हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि अब मैं सेकेंड ईयर के नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करा सकती हूँ और करा भी रही हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में कि मैं सेकेंड ईयर के नोट्स जो हूँ बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने जो सब्जेक्ट शुरू किया है वो है MHI 03 और उसका यूनिट 1 है जनरलाइजेशन। तो इस पे मैं आज नोट्स बना रही हूँ और इसका जो क्वेश्चन मैंने लिया है, ओवरऑल जो मैंने देखा है, इसमें यही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे दिखा है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी देखें 10 साल के, क्योंकि मैंने 2011 से रेफ़र किया है, 2011 से लेके अभी तक प्रेजेंट तक। तो इसमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है व्हाट इज़ जनरलाइजेशन एंड डिस्कस द रोल ऑफ जनरलाइजेशन इन हिस्ट्री राइटिंग। तो यहाँ पे इसलिए मैंने यही क्वेश्चन जो है पूछा गया। ठीक है, तो अभी मैं ये तैयार कर रही हूँ नोट्स। एक बार ये तैयार हो जाए फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। तो यहाँ पे आपके ये नोट्स जो है तैयार हो गए हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जो मेन क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछा जाता है वो है व्हाट इज़ जनरलाइजेशन, डिस्कस द रोल ऑफ जनरलाइजेशन इन हिस्ट्री राइटिंग। तो सबसे पहले मैंने जो है डेफिनेशन दी है जनरलाइजेशन की, उसके बाद उसके साथ एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि जनरलाइजेशन इज़ अ लिंकेज ऑफ डिफरेंट फैक्ट्स विद ईच अदर। इट इज़ थ्रू जनरलाइजेशन historians analyze and interpret their materials, data, facts or events to provide an historical account. एग्जाम्पल के लिए जैसे कि जनरलाइजेशन इज मेड when the caste, religion, period and political and economic situation related to former US President George W. Bush are mentioned. By connecting these facts with him, it is suggested that these datas are important to say about his personality and administration. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो है रोल ऑफ जनरलाइजेशन इन हिस्ट्री राइटिंग। तो इसको मैंने टोटल जो है 9 पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया है। 9 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताए हैं। तो पहला रोल है जनरलाइजेशन प्रोवाइड अ मीनिंग टू अ मास ऑफ अनटाइडी फैक्ट्स which are otherwise a pile of notes. They improve a historian perception and broaden his gaze into his material. They increase his ability to grasp on ever increasing area of reality and make more and more complex interconnection. They enable historians to analyze, interpret, and explain data and fact. They enable historians to draw inferences and establish chain of causation and consequence or effect. They motivate historians to look for new facts and sources. Quite often, new sources can be properly grasped only through new generalization. They bring out new points and meaning of known and old fact. When it is said that a historian has thrown new light on old fact, it means that the historian has used new generalization to understand the new fact. They enable historians go beyond the face value and literal meaning of fact. They lead him to establish their significance and relevance in his narrative. They help the historians to avoid empirism or literalism. They help historians critically look at what they are saying at the theoretical plane. When a historian consciously classifies or categorizes events to examine their meaning or relevance, he makes generalization. The next step is the historian starts looking for facts which are contradictory. Here again he makes generalization to look for facts which might contradict his view. They enable history students to find out which of his notes are significant and relevant to his research topic. In fact, a student of history essay or thesis has to be a series of generalization to be tested whether he puts them as statements or question.
They lead to debate among historians. Generalization lead historians to pose issues for discussion and debate. तो यहाँ पे ये टॉपिक आपका फिनिश होता है और इस चैप्टर में से ओवरऑल जितना मैंने एनालाइज किया है सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाता है और यही इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एक कमेंट मेरे पास आया था पिछले चैप्टर के रिगार्डिंग, उनका नाम तो नहीं लिखा लेकिन कमेंट एंटरटेनमेंट HTR करके आया था कि हिंदी नोट्स। तो मैंने उनसे पूछा था कि आपको हिंदी नोट्स किस चैप्टर के चाहिए, तो आपने कोई रिप्लाई नहीं किया मुझे। आपको उसी चैप्टर के हिंदी में नोट्स चाहिए या किसी और चैप्टर में हिंदी के नोट्स चाहिए, तो ये आप मुझे बताइए, तो उसके बाद ही तो मैं वीडियो बना पाऊँगी ना। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मुझे अगर आप ये मेरा वीडियो देखें तो आप प्लीज़ मुझे इसमें लिख के बताइए कि आपको उसी चैप्टर में हिंदी के नोट्स चाहिए या किसी और चैप्टर के, जिस भी चैप्टर के मतलब आपको हिंदी के नोट्स चाहिए, आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिख के भेजिए, ठीक है। और जिन बच्चों को अगर सेकेंड ईयर के भी नोट्स चाहिए हो हिस्ट्री के, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट्स मिल जाएंगे, असाइनमेंट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। मेरा ये व्हाट्सएप नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आपको उस पर सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक बाय।